مضمون سماجی سائنس جماعت دہم، اسکورنگ اور پاسنگ پیکج، متوقع 3 مارکس کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ وار سیریز زوم پارٹ 3۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا باب، اس میں سے کام اور اقتصادی زندگی۔ پہلا کوشچن، تقسیم محنت کی درجہ بندی کریں۔ تو کا جواب، مزدوری کے کام کی تقسیم جو لوگ انقیاد پر کرتے ہیں وہ عمر، دلچسپی، جنس، مہارت، قابلیت، صلاحیت، کام کی خواہش، ذوق، ہنر، ذائقہ، خصوصی مہارت وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کے اسباب یا وجوہات کی وضاحت کریں۔ تو متوقع جواب، آبادی میں اضافہ، سماجی عدم مساوات، مشینوں پر انحصار یا میکانائزیشن، ناکافی سرمایہ اور ناخواندگی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کے اثرات کیا ہیں۔ تو جواب، غربت، خراب صحت، جرائم، رشوت یا بدعنوانی، خاندانی بگاڑ، جھگڑے، دھوکہ دہی، ڈکیتی یا چوری اور جسم فروشی یا بدکاری وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن لیں گے، بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کون کون سے ہیں؟ جواب، آبادی میں کنٹرول، چھوٹے پیمانے کی یا کاٹیج انڈسٹریز کی حوصلہ افزائی، زرعی ترقی، صنعتی ترقی، تعلیمی اصلاحات، 5 سالہ منصوبے، پیشہ ورانہ تعلیم کی حوصلہ افزائی، دیہی ترقی، روزگار گارنٹی پروگرام اور اطلاعات اور تکنیکی سدھار۔ اگلا سوال، منظم اور غیر منظم مزدور شعبوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 100% آپ کو یہ سوال آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ چاروں کوشچن پیپرز اور ماڈل کوشچن ابھی اسٹیٹ لیول پریپریٹری کوشچن پیپر میں بھی یہ سوال دہرایا گیا ہے۔ منظم مزدور یہ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور کام ان کا باقاعدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ نیکسٹ، منظم شعبہ کاروبار، اقتدار، مقام، مرتبہ، یہ ساری چیزیں تعین ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے لیے کیا ہوتا ہے، خصوصی مہارت، تربیت، ہنرمندی اور تجربہ اور تعلیمی صلاحیت کے موقع پر یہ کام ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کے سارے کام ہی کیا ہوتے ہیں، تحریری ہوتے ہیں معاملات۔ ان کے مقرر تنخواہ، مہنگائی کا بھتہ، چھٹیاں اور دیگر وظیفے یابی کی سہولیات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ طبی سہولیات بھی ان کو دی جاتی ہے۔ ان کی عمر کے متعین وقت تک کام کرنا پڑتا ہے اور کہاں کرتے ہیں یہ؟ بیمہ کمپنیاں، تعلیمی ادارے، بینک، فوج، نجی کمپنیاں، سرکاری محکمے وغیرہ میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم غیر منظم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کسی بھی یہ، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 98% بھی زیادہ ہے، کسی بھی بے قاعدہ یا قانون یا کسی تنظیم کے ماتحت مختلف کام و کاج میں خود کو شامل کرتے ہیں۔ یہ روزانہ کی اجرت ہو یا ماہواری یا ہفتہ واری پیمنٹ ان کو ملتی ہے۔ یہ نفع بخش کام کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کے کام کا جو علاقہ ہے بہت وسیع ہے اور سرکار کے ماتحت نہیں ہوتے، جیسے گھر کی تعمیری کام کرنے والے، گونڈیاں، مستریاں اور گھریلو کام کرنے والے یعنی ڈومیسٹک ورکرز، زرعی مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، اور خونچے والے، ترکالی والے، ٹھیلے والے اور اشیاء کو فروخت کرنے والے۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہندوستان کی باب مٹی، اس میں سے پہلا کوشچن، ہندوستان میں کس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے؟ مٹی کے کٹاؤ کی وجوہات کی فہرست بنائیے۔ تو عام طور پر یہاں پر اہم 6 قسم کی مٹی پائی جاتی ہے، جیسے سلسلائی مٹی، کالی مٹی یا تو سرخ یا لال، لیٹریٹ مٹی اور صحرائی مٹی اور پہاڑی۔ اب اس کی مٹی کے کٹاؤ کے وجوہات دیکھتے ہیں۔ پہلے جنگلات کی کٹائی ہے، حد سے زیادہ مویشیوں کا چرانا ہے، کاشت کو غیر سائنسی طریقے سے کرنا اور آب پاشی کا حد سے زیادہ استعمال۔ نیکسٹ، مٹی کے کٹاؤ سے کیا مراد ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو سمپل، مختلف قدرتی قوتوں کے ذریعے سطح زمین کی بالائی پرت کی منتقلی، یعنی مٹی کی وہ پرت کی منتقلی کو مٹی کے کٹاؤ کہتے ہیں یا کھرچنا بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کیسے کریں۔ زرعی یا عریضی کے گرد بندوں کا تعمیر کرنا ہے۔ دوسرا، اسٹیئرکیس یا تو چھت والے زرعی کھیتوں کی ترقی ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی روک تھام ہے۔ شجرکاری کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ مویشیوں کو چرانے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ پانی کے منصوبہ بند استعمال اور افقی حل کو جوتنا اور چیک ڈیمز کی تعمیر کروانا۔ نیکسٹ ہے مٹی کے کٹاؤ کی وجوہات اور اثرات کی وضاحت کریں۔ تو ہم نے ابھی وجوہات کو دیکھ لیا ہے، ہم ڈائریکٹ اثرات پر آ جاتے ہیں۔ یہ دریا کے بستروں میں غاد یعنی سلٹ کو جمع ہونے کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا، سیلاب کے نام پر پانی کو اوور فلو کرتا ہے۔ اس سے ندی کی وجہ سے ان کی سمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آبی ذخائر میں پانی کے ذخائر کی گنجائش کم ہوتی ہے، حجم کم ہوتا رہتا ہے ان کا۔
दूसरा कुदरती जो चश्मे हैं इस मिट्टी के कटाव की वजह से वो भी सूख जाते हैं और ज़राई सरगर्मियाँ और में से और पैदावारी सरगर्मियाँ कम होते चले जाते हैं। हमारा अगला जो बाब है वो हिंदुस्तान के जंगलाती वसाइल। तो सवाल उसमें से हिंदुस्तान के जंगलाती वसाइल के अक़साम की दर्जाबंदी करें। तो कुदरती नबातात को बुनियादी तौर पर जंगलात कहा जाता है। उसको 6 अहम अक़साम में से हम तकसीम करते हैं या तो दर्जाबंदी करते हैं। कौन कौन से हैं? सदाबहार जंगलात, बरगरेज मानसूनी जंगलात, हाराई घास के मैदान, मैंग्रोव के जंगलात, सहराई जंगलात और हिमालय के अल्पाइन जंगलात। अगला सवाल लेते हैं कि हिंदुस्तान के जंगलाती इलाके बतदरीज कम हो रहे हैं, क्यों? बहुत सिंपल है, जंगली इलाका कम हो रहा है, वजह क्या है? ज़राअत की तोसी यानी फैलाव हो रहा है, और दूसरा जानवरों मवेशियों का चराना, सड़कों की तामीर हो रही है, रेल के रास्ते पटरियां की तामीर हो रही है, आबपाशी के मंसूबे को वसअत दी जा रही है, जंगल की आग भी है, कानकनी भी है, और इसके अलावा शहरकारी भी है, और बहुत से रीजंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के अहम तरीक़ों की वजाहत करी है, यानी कौन से तरीके हैं जिससे जंगलात की हिफाजत हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? बीमारियों से जंगल के दरख्तों की हिफाजत करें और पौधे उनकी जगह पर नए पौधे या शजरकारी का काम करें, बीज को बोएं, दरख्तों की गैर कानूनी कटाव के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले ये चोरों को रोको, हम चोरी से ये करते हैं। जंगलात में घरेलू जानवरों को चराने से गुरेज करें, यहाँ गोमाड़ा जहाँ मुख्तस है वहाँ पर आप चरवाएं। लोगों को पौधे उगाने की तरगीब देना, दरख्तों के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना, इनकी हिफाजत की तरगीब देना, समाजी जंगलात के मंसूबों तेज़ी और कामयाबी साथ में नाफिज करना। अगला बाब जो है हमारा हिंदुस्तान की अहम सनतें। तो उसका सवाल किस तरह सनतें किसी मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में मदद करते हैं, वजाहत कीजिए। यानी सिंपल क्या है, माशी तरक्की में सनतों का किरदार है। तो मुतवक्का जवाब, इंसान की जदीद माशी सरगर्मियों में सनतें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ये एक अच्छी खुसूसियत भी है, वो ज़रूरी अशिया को फराहम करते हैं और रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, पैदा करते हैं, फ़िक्स आमदनी में इजाफा करते हैं, ज़र मुबादिल यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है कमाने का अहम जरिया है, लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ज़राअत पर दबाव कम करते हैं और खदमाती यानी सालसी शोबे की तरक्की में भी मदद करते हैं, सानवी और सालसी। अगला सवाल लेते हैं कि सनत के मकामियत यानी लोकलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है 500 से, इस पर अच्छा खासा आप तैयारी करके लें। असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से? तो मकामियत पर ये कौन कौन से अशिया दरकार हैं? तो पहले शुरू करते हैं जवाब, खाम माल की दस्तियाबी। खाम माल नहीं तो फिर कैसा होगा, सनत लगाकर क्या करेंगे? तवानाई के वसाइल, पावर सप्लाई होना, कम कीमत पर ज़मीन की दस्तियाबी है, नकल हमल और मौसलाती सहूलियात जैसे सड़कें, रेलवे, फ़ज़ाई, बंदरगाही वगैरह, मार्केट की सहूलियत, सरमायाकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट, मजदूरों की दस्तियाबी और पानी की फराहमी, बंदरगाह की सहूलियत, टेक्नोलॉजी और हुकूमत की पॉलिसियाँ। नेक्स्ट सवाल लेंगे कि हिंदुस्तान के बड़े सनती इलाके यानी अहम हलकों की फहरिस्त बनाइए। तो वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? हुगली का इलाका, मुंबई और पुणे का इलाका, अहमदाबाद और वडोदरा का इलाका, दामोदर वैली का सनती इलाका, जुनूबी सनती इलाका, कौमी दारुल हुकूमत या सदर मुकाम का इलाका दिल्ली के अतराफ, विशाखापट्टनम और गुंटूर का इलाका, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम का इलाका ये केरल का है, ये विशाखापट्टनम एंड गुंटूर आंध्रा का है। नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अहम कामयाबियां या हुसूलाबियां क्या हैं? ये तंजीम 15 अगस्त 1970 को वजूद में आई। इसका जो हेडक्वार्टर है, सदर मुकाम है, वो बेंगलुरु में। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, कर्नाटक में है इसका, सब दिल्ली में रहती हैं, ये बेंगलुरु में है माशाल्लाह। इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तजुर्बा बढ़ाने के लिए मुतारिफ करवाया था। इसरो के जरिए पहली बार मरीख तक पहुंचने वाला हिंदुस्तान एक पहला मुल्क बना है। हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने इसरो के जरिए से लॉन्च किए गए सैटेलाइट के जरिए कुतुब जुनूबी पर उतरा, चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरा। हम अगला जो बाब ले रहे हैं वो मईशत और हुकूमत। 5 साला मंसूबे के अगराज, मकासद या अहदाफ क्या हैं? पहले थे क्योंकि अब वो खत्म हो गया, अब नीति आयोग है उसके ऊपर, तो थे
गुर्बत का खात्मा, मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, मईशत को जदीद बनाना, पैदावार में मुमकिन हद तक इजाफा करना, रोज़गार के मौक़े फराहम करना और इजाफा करना, माशी अदम मसावत को कम करना और माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो हिंदुस्तान में सब्ज़ इनकलाब की अहमियत का जायज़ा लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी हो सकता है। 5 साला मंसूबे की सबसे बड़ी जो कामयाबी थी वो सब्ज़ इनकलाब है। इसका मतलब है फौरी या तेज़ी से तरक्की करना। इस अरसे के दौरान ग़िज़ाई अजनास यानी खुराक के जितने पैदावारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्ज़ इनकलाब कहा जाता है। हिंदुस्तान में सब्ज़ इनकलाब के बावाए आदम के तौर पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ज़रूरी पैदावार की कमी और ग़िज़ाई अजनास की शिद्दत की किल्लत के बाद हुकूमत हिंद ने आला पैदावार वाले अक़साम के बीज यानी ज़ायद फसल देने वाले इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें कौन कौन से हैं? गंदुम है, धान है, जवार है, रागी है, गन्ना है। ज़्यादा पैदावार वाले ये बुड्ढी कमरती के अनाज का इस्तेमाल करते हुए फसल उगाने में मखसूस ग़िज़ाई अज्जा फराहम करना शामिल है। पानी की बाकायदा फराहमी और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, इसीलिए कीमियाई खादों और कीड़ मार अद्वियात का इस्तेमाल, आबपाशी की सहूलियत भी ज़्यादा पैदावार देने वाले अक़साम वाले बीजों के इस्तेमाल से शुरू की गई। इसके नतीजे में गंदुम या तो अनाज की पैदावार में बेपना इजाफा हुआ है। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, 5 साला मंसूबे की कामयाबियाँ क्या हैं? मुतवक्का जवाब, मईशत के 3 शोबों में यानी ज़राअत, सनत और खिदमत या तो सालसी में तरक्की हुई। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में खुद कफ़ीलियत हासिल की गई। सनत और खिदमत की शोबों की तौसी से रोज़गार के मौके बढ़ गए। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बेपनाह तरक्की की रिकॉर्ड की गई है। तरक्की के दीगर पैमाने या पैरामीटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी देखी जाए। लोगों की मुतवक्का ज़िंदगी और ख़वानदगी की शरह में बेहतरी आई है। बच्चों की शरह अमवात और बादज़ पैदाइश मर्ग यानी तिफ़ल मर्ग में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि दूसरे सब्ज़ इनकलाब या दायमी सब्ज़ इनकलाब की अहमियत की वजाहत करें। तो मुतवक्का जवाब है, ज़रई शोबे के मसाइल को हल करने के लिए हिंदुस्तानी ज़राअत में नामियाती और कुदरती खेती को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाती है। ज़रई पैदावार में माहौल दोस्त तकनीक को वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत इन तकनीकों के ज़रिए से ज़रई पैदावार मज़ीद बढ़ाने की अपनी कोशिश कर रही है। कुछ पुरजोश किसान माहौल दोस्त तरीका अपना रहे हैं। मुस्तहकम ज़रई तरीक़ों को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जैसे नामियाती काश्तकारी, सिफर सरमाया की काश्तकारी यानी बेखर्च काश्तकारी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में नीति आयोग की अहमियत और मकासद की वजाहत करें। नीति आयोग के बारे में ये क्या 2 मार्च को कंपलसरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह तब्दील करके उसको बनाया गया। लफ्ज़ नीति जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट उसका मुकफ़िफ़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी सरबराही मुल्क के वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन रोज़ाना इंतज़ामिया की देखभाल वाइस चेयरमैन करते हैं। ये ज़रूरी मालूमात के साथ एक जदीद तरीन वसाइल के मरकज़ के तौर पर भी तरक्की कर रहा है। अब इसके हम मकासद देखते हैं कि क्या मकासद, किस मकासद की बुनियाद पर इसकी बुनियाद रखी गई। रियासतों के फ़आल शमूलियत के साथ साथ कौमी तरक्की की तरजीहात, शोबों और हिकमत अमलियों के मुश्तरका विज़न को तैयार करना है। मुनज़्ज़म हिमायती इक़दामात के ज़रिए से कोऑपरेटिव वफाकियत को तेज़ तर करना है। रियासतों के साथ मुसलसल बुनियादों पर मैकेनिज़्म या तस्लीम करते हुए कि मजबूत रियासतें एक मजबूत कौम बनाती हैं। ये हुनर जो रफ्तार के साथ फ़न को काबिल बनाए और तहक़ीक़ व इख्तरा को फ़रोग़ दे सकें। हुकूमत के लिए स्ट्रेटजिक पॉलिसी या विज़न फराहम करें और हंगामी मसाइल पर निपटें। इसी में से अब अगला जो सवाल है हमारा, सब्ज़ इनकलाब वक़ूअ पज़ीर होने के लिए क्या इक़दामात किए गए? तो जवाब देखिए, हैंस ज़रई शोबे की पज़ीर तरक्की में कीमियाई खादों, कीड़मार अद्वियात का इस्तेमाल, इसकी तरक्की के लिए ज़्यादा पैदावार देने वाले अक़साम के बीजों का इस्तेमाल आबपाशी की सहूलियत में शुरू की गई है। इसके नतीजे में गंदुम की पैदावार में बेपना इजाफा हुआ है। ज़रई पैदावार में इस्तेमाल होने वाले इससे बेहतर टेक्नोलॉजी को प्री हार्वेस्टिंग या कबलज़ बैसाखी या फसल काटने की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने मुतारफ़ करवाया था। स्वामीनाथन को हिंदुस्तान का ज़रई साइंसदान थे, जिनको बाबाए आदम भी कहा जाता है सब्ज़ इनकलाब का। इससे मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने किसानों को ज़्यादा फसल देने वाले अनाज का यानी बीजों का इस्तेमाल करने की तरगीब दी।
धान, जवार, रागी, गन्ने और दीगर फसलों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है। फसल उगाने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी करने की नतीजतन ज़रूरी पैदावार में बड़ी तरक्की हुई। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है, प्री हार्वेस्टिंग या तो कबलज बैसाखी या तो कबलज फसल काटने की टेक्नोलॉजी या माबाद फसल काटने की बैसाखी या टेक्नोलॉजी के दरमियान में फ़र्क क्या है? बड़ा सिंपल फ़र्क है। देखिए, कबलज फसल काटने की या बैसाखी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ़ायदा वार देने वाले उम्दा बीजों का इस्तेमाल, कीमियाई खाद और कीड़मार अद्वियात का इस्तेमाल, ज़रूरी पैदावार में इस्तेमाल होने वाली इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को प्री हार्वेस्टिंग या कबलज फसल काटने या बैसाखी की टेक्नोलॉजी कहते हैं। किसानों को कम सूद पर बैंक से कर्जा और इमदादी अंजुमनों से कर्जा दिलवाना और आबपाशी की को देना, तो ये प्री हो गई। अब जो पोस्ट है वो क्या है देखेंगे, किसानों की मसनूआत को अच्छी कीमत, यानी अब फसल काटने के बाद में क्या क्या हो सकता है, उनकी दर्जाबंदी है पहले, फिर उसके बाद में को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देना है, मंडियों को बेहतर बनाना है उनके, और जो जायद जो फसल खाने के बाद में बच जाती है उसको क्या करना, कोल्ड स्टोरेज में गोदामों में गोदाम तामीर कराना और उनको वहाँ पर प्रिजर्व करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। ज़रूरी पैदावार की ख़रीदारी और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं, सभी को पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या माबाद बैसाखी या फसल काटने के बाद की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज़ इस सीरीज़ का नेक्स्ट हिस्सा हम बहुत जल्द आपको अपलोड कर देंगे।